I never had a girlfriend in my life, and in school I never talked to any girl. Okay. But at college I tried, but never had a girlfriend. Just had some female friends. That's it. And it's same for the work. Yeah, same in the works in the workplace. Yeah, workplace. It's just female friends. Never had a girlfriend. Once I proposed one girl. But she like rose on me. She said, I see you as my brother. That's it. This is pure consultation for you, where I really just want to know how I can come in and help you out with your reading works. Okay. Is it visible now? Yes. Amazing, bhai. How old are you? I'm 25. You're 25, and what do you do exactly? I work as a data analyst. You work as a data analyst. Yeah, but my currently I'm at home. I left the job because of the it was on a contract, so contract got over. Now I'm currently applying to new jobs. Okay, okay. And where are you from, Ritwik? I'm from Goa. You're from Goa. Amazing. Yeah. Nice. So you're back at home in Goa? Yeah. तो बढ़िया है भाई क्या मतलब I so we are going to discuss about your reading problems over here, right? If you know about it. So the intention is to basically give you an overview and whatever your problems are or whatever doubts you are having in your reading life to proceed how to get it better. We're going to talk about all of those. Okay? So tell me a little bit about your reading background. मतलब अभी तक स्कूल से लेके कॉलेज से लेके या फिर जॉब लाइफ में give me a good description of your reading life. So I never had a girlfriend in my life, and in school I never talked to any girl. Okay. At college I tried, but never had a girlfriend. Just had some female friends. That's it. And it's same for the work. Yeah, same in the the workplace. Yeah, workplace. Just female friends. Never had a girlfriend. Once I proposed one girl. I tried, but she like rose on me. She said, I see you as my brother. That's it. Did were you people like really close or good friends before you actually proposed her? Yeah, we were good friends, but Yeah. I think I never saw any intention of no. I just played it safe. It's safe, अ, I guess. ये कितने टाइम पहले की बात है? It was just 6 months before. This was just 6 months before. Yeah. And ये तूने अपनी पहले किसी बंदी को मतलब you told somebody कि either you wanted to Yeah. Yeah. कभी तो इससे पहले कभी तूने किसी को कुछ नहीं बताया? No, no. क्यों? Just had yeah. I didn't had any romantic interest. Means uh yeah, ये स्कूल में बताया था मैंने। स्कूल में वो होते ना क्रशेस वो ज़्यादा कोई वही इस कॉलेज में मुझे कोई मिली नहीं बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग कंप्यूटर साइंस सो देयर वर नो गर्ल्स इन माय बैच सो आई तो एम या दैट्स where did you complete your college from? रोज़ली कॉलेज ये कहाँ पे है भाई मतलब? ये इस साउथ गोवा में, मारगाँव सिटी है। हाँ, और ये तू जॉब कहाँ पे कर रहा था अभी लास्ट? तो मैं वो लोकल कंपनी आईटी कंपनी जेरविस ग्लोबल थी वहाँ पे कर रहा था। 100 भी ज़्यादा हाँ मारगाँव में, गोवा में। अच्छा। तो you have been mostly living around Goa. हाँ, या गोवा में है। गोवा के बाहर में गया है। क्या बोलते हैं कि गोवा जाओ बंदियाँ मिल जाएँगी, you'll find girls over there and different number of things और तू कह रहा है कि मैं गोवा से हूँ और मतलब मैं बिल्कुल सिंगल रहा हूँ। Yeah, it's like a stereotype. It's for tourists only to get the girls because local गोवान लोकल है ना, यहाँ ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करते। इट्स लाइक अ परसेप्शन स्टेरियोटाइप है वहाँ पर। वो बस स्टेरियोटाइप है गोवा का। नहीं मेरे को पता है गोवान गर्ल्स I've had some students from Goa and they have told me about the same thing that you are telling me right now. तो कोई बात नहीं। मेरे को एक क्वेश्चन है तेरे से। While you were in school or in college, ठीक है? You said कि you never had an intention of you never proposed anyone or never had a sexual desire for anyone or romantic way, नहीं ठीक है? ऐसा बहुत बार होता है स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे भले ही हम कितना भी वी आर इनटू स्टडीज बट कभी ना कभी एक इंटरैक्शन किसी से होता है या फिर कोई एक अदर जेंडर का होता है जो जो हमको पसंद आ ही जाता है, राइट? एक फिजिकली अट्रैक्शन तो होता ही होता है।
तो तेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं था? कोई लड़की नहीं पसंद है तेरे को कभी अपने स्कूल, कॉलेज में या कहीं पे भी? स्कूल में एक लड़की पसंद थी मुझे, बट मुझे वो उस टाइम में लाइक मैच्योर नहीं था। सो एक पसंद थी, मैं बात कर रहा था बट वो कुछ बात बनी नहीं। ठीक है। हाँ। मतलब उसमें वहाँ पे मतलब बात कर रहा था मतलब क्या था वहाँ पे? कैसे हाउ डू यू यूज्ड टू इंटरैक्ट? डू यू यूज्ड टू एक्चुअली गो एंड टॉक टू हर या फिर अपने आप को बिल्कुल तूने ट्राई नहीं किया? ज़्यादा कुछ बातें नहीं की। इसके लाइक उस 10th स्टैंडर्ड में ऐसी पढ़ाई-पढ़ाई थी ना, सो ज़्यादा कुछ सब प्रेशर था पढ़ाई-पढ़ाई करो, सो इंटरेक्शन ही कम ही हुआ। कॉलेज में जाके कोई लड़की नहीं पसंद आई कभी? कॉलेज में एक लड़की पसंद थी, जब 3rd ईयर में बिकॉज़ ऑफ वी वर इन द कोविड बैच, सो 2 साल लेने का ऑफ ऑनलाइन था। तो 3rd ईयर सिर्फ हमको 1 साल मिला था। 1 साल में वही चला गया तो 3rd में एक लड़की पसंद थी मुझे, मैंने उसकी फ्रेंडशिप की, पर उसका पता चला लास्ट में उसका बॉयफ्रेंड था। सो तो बॉयफ्रेंड था तो तूने कभी ट्राई नहीं किया और तूने कभी कन्वे नहीं किया? अ नहीं कन्वे नहीं किया मैंने। वो लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी, सो ठीक है, ठीक है। अब मेरा तेरे से एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू रियली थिंक कि तेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है लड़के में? मतलब व्हेन यू एक्चुअली लाइक समवन और यू हैव अ डिज़ायर फॉर समवन to what is the biggest problem that you face around women? Is it initiation, building that connection या फिर लीड करना नहीं आता या फिर बंदियाँ फ्रेंड ज़ोन करके चली जाती हैं या फिर क्या कहते हैं दे जस्ट यू डोंट नो हाउ टू सेक्सुअलाइज़ दैट कन्वर्सेशन यू आर जस्ट ट्राइंग वेयर डू यू रियली थिंक दैट योर बिगेस्ट प्रॉब्लम लाई विद वुमेन? आई थिंक वन इज़ अप्रोचिंग approach and once I even if I approach I don't know how to maintain that, like it goes to a friendship like zone, or they get bored, or they get bored even if I approach, but yeah, so मुझे वो bored होते हैं। Even if my approach is good, I make a laugh starting में। तेरे को अप्रोच करने में क्या प्रॉब्लम आती है? approach मुझे एक सोशल एंग्जाइटी है, मैं डरता हूँ मैं क्या होगा और वो ठीक है। या फिर रिजेक्शन या फिर क्या? हाँ रिजेक्शन नर्वसनेस। तो तू कभी अप्रोच करता ही नहीं है, यू लेट द पीपल गो व्हेनेवर यू लाइक देम और समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट लेट देम गो? No, I approach, but not like 4 or 10 times I approach. रैंडम और किसी कभी बात नहीं की, सिर्फ जिम में करता हूँ और एट वर्क प्लेस आई डिड, बट वो भी लाइक At your workplace or gym, you have actually randomly अभी नहीं रैंडम कभी नहीं गया। तेरे को एक बात बताता हूँ, हाँ, अपने वर्क प्लेस पे या फिर ऐसी किसी लोकेशंस में जहाँ पे हम रोज़ जाते हैं, मतलब किसी एक पर्पस के साथ जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिम में हम एक पर्पस के साथ जा रहे हैं कि हमको बॉडी बनानी है, वहाँ पे हम अप्रोचेस नहीं करते। अपने ऑफ़िस में हम काम के पर्पस से जा रहे हैं, वहाँ पे हम अप्रोचेस नहीं करते। अप्रोचेस इज़ वे डिफरेंट देन टॉकिंग टू वुमन, ठीक है? Approaches has a structure. It has a process which you will take forward. लेकिन when you do it in your office, sometimes you get rejected, sometimes it goes in a very different way, sometimes you get on a date. ठीक है? तो जब हम यही एक प्रोफेशनल स्पेस में करते हैं, तो दैट डज़न्ट लुक गुड। एक इमेज होती है जो तू क्रिएट करता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करता है वहाँ पे अपने काम से लेके, राइट? बट इफ यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग वुमेन, दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस टू अप्रोच। If you really want to do approaches, cold approaches, या फिर if you really want to go and talk to a girl that you desire, there are a lot of women out there. ठीक है? You'll have to go to places where there are a lot of women. ठीक है? For an example, मेरे को पता है that there are hobbies of women which in which they find it very comfortable and they want to do a lot of things. ठीक है? I will find out one of those things which I also like and probably I'll join those classes. There I'll find a lot of like-minded people, like-minded women out there जिनके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? या फिर आई विल लर्न हाउ टू अप्रोच इन अ बेटर वे, हाउ टू कीप माय सोशल एंग्जायटी अवे, हाउ टू ओवरकम माय सोशल एंग्जायटी, एंड देन फ्रॉम देयर I'll go and approach randomly at times. I'll do cold approaches. But places like college, your office, your मतलब तू वहाँ पे अपनी वैल्यू लूज कर रहा है. You're not behaving as a high value guy when you're going for work and you are just thinking about approaching women. That is not what a high value man will do, right? So when I'm going for work, my only intention is to work.
But when I'm going to chill out, when I'm going to enjoy, when I'm walking on a road, when I'm going to a cafe to eat, वहाँ पे I'll go and approach someone when I'll find a girl very attractive and desirable for me. Then I'll not stop. तब मैं नहीं रुकूंगा. I'll just go and say hi. I'll compliment her. Probably I'll start a conversation. I'll start a conversation in a direct or an indirect way. But I'll tell you how we can do that slowly. But again, these are the places where we don't have to approach, where you are actually approaching. और जहाँ पे तेरे को करनी है वहाँ पे तूने आज तक एक भी अप्रोच नहीं करी है. तेरे को कभी आज तक ऐसा वॉक करते हुए कभी तू मॉल गया हो या फिर कहीं मार्केट गया हो, कभी किसी इवेंट में गया हो, तेरे को कोई बंदी पसंद नहीं है? हाँ, हाँ, पसंद आई थी बट डर था ना, वो क्या लाइक क्या होगा वो? What's the डर? लाइक शी विल गेट अनकंफर्टेबल लाइक लाइक क्रीप आउट ओके, और क्या लगा? और क्या लगता है ऐसा? और लाइक फेयर रिजेक्शन और सराउंडिंग में इमेज रहती है ना, लोग देखते हैं वो क्या करता है ऐसे, वही है। ठीक है, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड लाइक शी कैन से लाइक दैट। आई अंडरस्टैंड। आई डिड विल अनकंफर्टेबल। देखो पता है सोशल एंजाइटी जो होती है, आई टेल यू अ वेरी बिग थिंग अबाउट सोशल एंजाइटी. सोशल एंजाइटी इज पार्ट ऑफ यू. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि सोशल एंजाइटी यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज पार्ट ऑफ यू. जैसे कोई भी कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, ट्रॉमा, एनीथिंग, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ यू. इट इज गोइंग टू बी देयर. इवन टुडे इफ यू विल थिंक कि मेरे को आज एंजाइटी नहीं फील होती, आज भी होती है. But I know about good things about me, and I think about all those good things and positive things about me, and then I feel more confident. ठीक है, या फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जब भी आज से पहले कभी अप्रोच करी है, जब भी लड़कियों से बात करी है, जब जब उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया है इस चीज को करने के लिए, सो आई जस्ट वॉक अप टू देम थिंकिंग अबाउट ऑल दोस गुड थिंग्स एंड आई फील मोर कॉन्फिडेंट. दिस इज हाउ आई ओवरकम माई एंजाइटी. देन एक और चीज होती है कि हम अप्रोच जो करते हैं वो विद इन 3 सेकेंड वी अप्रोच द पर्सन. सो व्हाट रियली हैपेंस इज हमारा माइंड कुछ भी नया करने के लिए, अगर तू कुछ भी नई एक चीज करने जाएगा ना, तेरा दिमाग तेरे को रोकेगा और इट विल गिव यू सम थॉट्स जिसमें कुछ भी ऐसा हो जाएगा जहां पे कुछ बुरा हो सकता है. ठीक है, whenever you will try to do something new or different, so for your mind that thing is can be dangerous to you, and that's why those visual comes. So your mind will always try to do things which you are comfortable with, and your mind will never try to make you do something which is uncomfortable or new to you. ठीक है, तो whenever that happens your mind will try to give you some visuals जहाँ पे you will feel uncomfortable and you will feel कि यार ये खराब हो जाएगा, तो you will stop. ठीक है, लेकिन अगर तू उसको ओवरकम कर ले और उन थॉट्स को आने ही ना दे, व्हाट विल रियली हैपन? यू विल एक्चुअली गो एंड डू दैट थिंग एंड यू विल रियलाइज कि ये उतनी डिफिकल्ट तो थी ही नहीं. एंड व्हेन यू विल डू दैट रेगुलरली, व्हाट विल रियली हैपन? योर माइंड विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट रियली डिफिकल्ट, दिस इज नॉट रियली डेंजरस, राइट? एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम इट. तो उसके लिए हम करते क्या? वी फॉलो अ 3 सेकेंड रूल. व्हाट इज अ 3 सेकेंड रूल? अ 3 सेकेंड रूल इज, अगर मैंने किसी बंदी को जब पहली बार देखा और मेरे को वो अच्छी लगी, आई लाइक हर अटायर, आई लाइक हर व्हाटएवर शी इज वेयरिंग और समथिंग पर्टिकुलर अबाउट देम, आई लाइक हर आईज, आई लाइक हर शूज, आई विल जस्ट नोटिस दैट गर्ल एंड आई विल टेक द बेसिक स्टेप ऑफ starting to talk starting to walk towards her. My intention will directly change from like desiring her to actually go starting to walk towards her to talk to her. Within 3 seconds, I have to go and say hello to say hello to her. अब जब मैं ये करूंगा ना, अगर मैंने 3 से 5 सेकंड के अंदर कर लिया, तो जब तक मेरे दिमाग में वो थॉट्स क्लिक करते हैं, इतने सारे थॉट्स बनते, आई वॉज ऑलरेडी देयर. आई विल जस्ट गो एंड से हेलो, हाय. कुछ नहीं करना, रिजेक्ट ही तो होना है. ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर सकती है बंदी ना, रिजेक्ट होके आ जा भाई, कोई बात नहीं. हाउ टू ओवरकम रिजेक्शन? देयर इज अ वे टू ओवरकम रिजेक्शन एज वेल. रिजेक्शन हमको तभी रिजेक्शन से डर लगता है जब तक हमने इनफ नंबर ऑफ रिजेक्शन फेस ही नहीं किया अपनी लाइफ. अगर हमने इनफ नंबर ऑफ रिजेक्शन फेस किए हो तो तेरे को रिजेक्शन से डर नहीं लगेगा. रिजेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. देर आर लॉट ऑफ वुमेन, फॉर एन एग्जाम्पल, उस कोई कॉलेज में और उसको तू किसी को अप्रोच करना चाहता है, कोई लड़की है बहुत सुंदर है एंड तू उसको अप्रोच करना चाह रहा है. ठीक है, अब तू जा रहा है और तू गया और उस बंदी ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया.
अब तेरे को लग रहा है कि इसने मेरे को रिजेक्ट किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने कॉलेज से आ रही हो, उसको कोई सबमिशन करना हो कोई प्रोजेक्ट का या कुछ करना हो और शी इज़ सो मच वरीड इन दैट थॉट कि भाई मेरे को कल सबमिट करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। या फिर उसके घर पे उसके पेरेंट्स से लड़ाई हो गई हो या फिर उसके फ्रेंड्स में किसी से लड़ाई हो गई हो, उसके फ्रेंड्स ने उसको डिच कर दिया हो। कुछ भी हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ। शी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड बिकॉज़ ऑफ दैट शी एक्चुअली डिडन्ट वांटेड टू टॉक टू यू। तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 तरीके से रिजेक्शंस हैंडल होते हैं। एक होता है कि कुछ रिजेक्शंस डज़ नॉट have to do anything with you. It's their reality where they have said something and because they are occupied so much in themselves, they were not actually interested in talking to you. Or maybe she just had a boyfriend, or maybe she's just emotionally attached somewhere else. तो इसमें तेरे को थोड़ी रिजेक्ट किया उसने। उसने तो अपने लाइफ में कोई भी लड़का आता है उस जगह पे, उसको रिजेक्ट कर देती। तो व्हाई आर वी टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली? पहली, वी शुड नॉट टेक रिजेक्शंस पर्सनल। सेकंड पार्ट ऑफ इट इज़ कि कुछ रिजेक्शंस बहुत पर्सनल हो जाते हैं। अब वो पर्सनल कैसे हो सकते हैं? कोई भी रिजेक्शन जो हमको बहुत पर्सनल पर्सनल लगता है। अब जो दूसरा साइड ऑफ रिजेक्शन है, इज़ एक्चुअली पर्सनल। अब कोई लड़की तेरे को बोल देगी कि भाई तेरे मुँह पे ना बहुत सारे वो है दाने हैं, मेरे को नहीं ऐसे लग रहे, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, ठीक है? इस चीज़ को तू पर्सनल ले लेगा। एक कोई तेरे को बोल देगी कि भाई तू बिल्ली जैसे दिखता है। तू उस बात पे हँस देगा और हँस के चला जाएगा वहाँ से। बात नहीं करेगा शायद लेकिन उसको पर्सनल नहीं लेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जब उसने तेरे को बिल्ली बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे तू रिलेट नहीं कर सकता, तू उसपे हँस के चला गया, उसको तूने पर्सनल नहीं लिया। लेकिन तू फिर भी रिजेक्शन की तरह फ़ील कर रहा है और तू सैड हो गया। लेकिन कुछ चीज़ उसने ऐसी बोली जहाँ पे तेरे को वो चीज़ अपने आप से रिलेट कर, ठीक है? उस चीज़ को एक्चुअली तू उसने तेरे को बोला नहीं, ये चीज़ को तू सिर्फ़ इसलिए ज़्यादा पर्सनली ले रहा है, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ट्रुथ इन्वॉल्व्ड है एंड रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड। तू बचपन से वो चीज़ फ़ील करता आ रहा है। तू बचपन से वो फ़ील करता आ रहा है कि मेरे फेस पे जो पिंपल्स हैं या फिर जो भी एक्ने है, उसके चक्कर में मैं अच्छा नहीं दिखता, राइट? और उसने इस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया, इसलिए तूने उस रिजेक्शन को इतना सीरियसली ले लिया और तूने उसकी बात को इतना बहुत ज़्यादा पर्सनली लेके सच मान लिया, राइट? अब इसको ओवरकम कैसे करते हैं? एक तरफ तो मैंने तेरे को बोला कि रिजेक्शंस इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मैटर ही नहीं करते क्योंकि वो तेरे से पर्सनली उन चीज़ों का कोई लेना-देना ही नहीं है, राइट? Maybe she's in her own thought, she has her own journey. You don't know that girl, right? तो उसकी अपनी जर्नी उसने तेरे को रिजेक्ट कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं। लेट देम गो जस्ट हैव इट इन फन एंड जस्ट गो कि ठीक है अच्छा भाई कोई बात नहीं। इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। आई विल गो एंड टॉक टू मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन टुडे। आज तो मैं करके दिखाऊँगा मतलब मेरे को अपने आप के लिए करना है, कोई बात नहीं। करने चला गया मैं बहुत हँसे, बहुत फन मूड में चला गया। अब लेकिन दूसरी तरफ के रिजेक्शन जहाँ पे एक्चुअली उसमें कुछ ट्रुथ है, जिसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते। उसको कैसे एक्सेप्ट करें? उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको एक्सेप्टेंस चाहिए। वी रियली नीड टू हैव एक्सेप्टेंस कि हाँ, भाई मेरे फेस पे एक्ने है। अब है तो है, अब इस चीज़ को तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन डू some things which will improve my I will try to do some things which will make me more attractive as a person जिसको फिर एक्ने का फ़र्क ही ना पड़े। I'll try to learn on these skills. I'll try to develop some other skills. My communication, the way I talk, the way I move, my body language, या फिर the way I speak, everything. My social dynamics. I'll try to understand body language of the other person. What conveys that they are interested into me or they are not interested into me. Right? तो कुछ चीज़ें हमसे रिलेटेड होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ लेवल ऑफ ट्रुथ होता है। अगर मेरे को किसी ने सेल्फिश बोल दिया मैं बुरा सिर्फ़ तभी मानूँगा जब मैं अंदर से डीप इनसाइड फ़ील करता हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ। अगर मेरे को नहीं लगता होगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अंदर से सेल्फिश हूँ या फिर मेरे को पता है बचपन से मैंने ऐसा कुछ किए हैं चीज़ें, जहाँ पे मैं बहुत बार सेल्फिश बिहेव कर चुका हूँ और मेरे को किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तो वो मेरे को बुरी लग जाएगी। सो रिजेक्शंस तब तक इम्पोर्टेंट नहीं होते जब तक या तो उनका कोई हमसे रिलेशन ही नहीं होता या तो कहीं न कहीं वो हमसे जुड़े होते हैं। और अगर वो जुड़े होते हैं तो हमको उनको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ। हाँ, मैं मेरे फेस पे एक्ने है। क्या हो गया? कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों के बीच में लेकिन मेरे पास बहुत सारी अच्छी वैल्यूज़ हैं जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ।
I am a fun guy. I am a data analyst, right? कितने लोग data analyst बनना चाहते हैं? They want to have a good job in this particular field, but they don't have it. I am someone who has a lot of value to provide. I'm so confident that I can go and talk to a girl like that. 99% of the men cannot do this. Trust me, it is a value. अगर तू किसी लड़की से इतनी confidently बात कर सकता है ना, this is a value that you're providing. You can build those conversations. You're such a social guy. You know social dynamics. That is a value. तो अपनी वैल्यूज को उन चीजों से रिलेट मत कर जो चीजें रिजेक्शंस पे हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कर कि हाँ इट इज पार्ट ऑफ मी बट देयर इज अनदर गुड साइड ऑफ मी आई वर्क ऑन दोस थिंग्स राइट आई होप कि तेरे को ये जो बेसिक अप्रोच करने के लिए जो पुश चाहिए आई थिंक आई एम ट्राइंग टू जस्ट हेल्प यू आउट टू हाउ यू कैन जस्ट गो आउट एंड अप्रोच और कोई फर्क नहीं पड़ता भाई अगर तेरे को समझना है ना अगर तेरे को रिजेक्शन से ही डर लग रहा है ना 10 लोगों से जाके रिजेक्ट हो गया तेरा काम सिर्फ ये है कि आज मेरे को 10 लड़कियों से रिजेक्ट होना है अगर दिन में तूने जाके 10 लड़कियों ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया ना एक दिन अपने लिए टास्क बना के जा बाहर कि मेरे को आज 10 सबसे सुंदर बंदियों से रिजेक्ट होके आना है और अगर तूने 10 लड़कियों से रिजेक्शन ले लिए ट्रस्ट में अपने आप को एक ट्रीट देना मतलब अपने आप को एक अवार्ड देना कि आज मैंने मैंने जो एक अपने आप को टास्क दिया था मैंने वो कंप्लीट किया आज तो मैं जाके बिरयानी खाऊंगा भाई समझ रहा है तो यू विल फील कॉन्फिडेंट यू विल फील कि भाई ये तो बहुत बेसिक चीज है आप मेरे को जाके बात करनी है चलो चलो ये हल्के करते हैं दिस इज हाउ यू कैन लर्न हाउ टू अप्रोच अब सॉरी I like this advice. I like your advice. so और any more questions that you have any more questions that you want to particularly ask Yeah. इस चीज पे प्रॉब्लम होती है उस चीज पे प्रॉब्लम होती है anything that you want to ask भाई And even if I approach, I mean, even if I approach or talk to someone and she's my friend, I have to like maintain that. Tinder में एक match हुआ था match. So I cracked the jokes and also it was going well. Okay. And then I also took a number, then did chat with her, and so yesterday, day before yesterday, I said, "Okay, let's talk on a call." So I became so nervous on the call. So chat, my percentage was very good, very attractive on the chat. I was cracking joke and she was laughing and all. But जो वहाँ पर मुझको awkward silence और अ, ऐसा कुछ हो गया. So now I don't know what should I do like how to maintain that and chat पे मुझे कोई टॉपिक नहीं मिलता. बात कैसे करूँ चैट पर? एक बात बता मेरे मेरे यहाँ से मेरे यहाँ पे ना 2-3 क्वेश्चन है जैसे एक तो पहली बात तो वो बंदी कहाँ से है वेयर इज शी फ्रॉम She's from my state only, Goa. She's actually Bengal, but yeah, she's studying here. शी इज स्टडीइंग देयर अमेजिंग चलो अच्छी Asia, बात है yeah. व्हाई डिड आई आस्क यू इज अगर तू टेंडर वेंडर पे भी कहीं पे भी जा रहा है सोशल मीडिया या फिर इफ यू आर ट्राइंग टू टॉक टू अ गर्ल और समथिंग लाइक दैट पहली बात तो आई डोंट गो लाइक दैट आई ओनली टॉक टू वुमेन who I have personally met in life and I have felt good around them and then I took their number because of some reason that we could not end the date in the nice way or something like that या फिर उसको कहीं जाना है कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज है अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ है तभी मैं उससे नंबर एक्सचेंज करूंगा एंड देन आई विल गो एंड टॉक टेक्स्ट टेक्स्ट ठीक है on her WhatsApp, on her Instagram, or something like that. Otherwise, if there is a girl who I have never met, she's not from my city, I'll never talk to her. Why do I want to engage in a conversation with someone with an intention or a desire of, meeting someone like that? अगर मेरे को दोस्त बनाने हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग मतलब किसी से भी फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हो बट अगर मेरे को डिजायर है फॉर अ गर्ल वो मेरा उसी के साथ होता है जिसको मैं एक्चुअली पसंद करूं if I saw someone and I felt that she is really attractive, then in that case, I will surely go and talk to her, have a conversation with her, build that conversation, take her number, and then text her. Now, अब होगा क्या इससे इसका फायदा क्या है because there was a spark in our conversation when I text her there will be a lot to talk about जिस लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ जिस लड़की को मेरे को कुछ पता ही नहीं है उसको मैं टेक्स्ट पे क्या बात करूंगा और मैं क्यों ही बात करूंगा सिर्फ बिकॉज वो सुंदर लग रही है इसलिए नहीं भाई देयर इज अ लॉट अबाउट अ गर्ल बट व्हेन यू सी एंड यू फील दैट डिजायर फॉर समवन देन यू गो एंड अप्रोच right? So my way of going is ki I only talk to women who I have personally met in my life, and then I would use my social media or my WhatsApp or something like that to get in touch with her again.
And I will not try to do all those things. My intention is to spend time with her, not to talk to her over WhatsApp or text or calls. My intention is to meet her and spend good time with her, right? So I'll use all these platforms to connect with her, to call her to meet me again. I'll try to build that relationship, with build that fun over the chat, but my intention is only to meet her. My intention is to spend good time with her, to go on a date with her, to we eat good food while spending my time, or to do a lot of things, or just spend more time with her. That is not over the call or the text. My intention is to meet her, to take her out, because मेरे को नहीं समझ में आ रहा वो टेक्स्ट पे क्या बात कर रही है, क्या मतलब क्या हंस रही है. Can I make her feel different emotions over the text? Yes. But can I feel that whether she is actually feeling it? No. तो अगर जिस भी लड़की से बात करने की बात कर रहा है, my intention is अगर मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, I'll ask her out कि आई वुड लव टू मीट यू समडे, बिकॉज़ आई थिंक कि भाई तू फनी तो है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा टेक्स्ट पे यार कि मतलब तू एक्चुअली फनी है या सिर्फ बन रही है वैसे? और व्हाटएवर, आई विल बिल्ड दैट कन्वर्सेशन इन सच अ वे वेयर आई कैन कॉल हर आउट, राइट? So that is the most important part. Anyways, so I think one more thing is that you don't only have to make a woman laugh to get her attracted to you. Laughing or making them laugh is an emotion. Okay. But to make a woman really attracted to you, you want to make her feel different emotions. Different emotions हर अलग-अलग चीज़ों से पैदा होते हैं, कम क्रिएट होते हैं. कैसे? अगर मैं उससे मिल रहा हूँ, मैं इधर उससे अभी बात कर रहा हूँ, ये एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो एक इमोशन फ़ील कर रही है. देन फ्रॉम देयर आई विल हैव टेक हर टू अनदर स्पॉट जहाँ पे हम बैठ के कुछ और बात कर रहे हैं. फिर हम कहीं और वॉक करके चले गए, फिर हम किसी पार्टी में चले गए, फिर हम एक कैफ़े में बैठ गए, फिर हम एक मूवी देखने चले गए. हर जगह पे उसने अलग-अलग इमोशंस फ़ील किए. यहाँ पे वो मेरे साथ हँस भी रही है, कभी वो कुछ सीरियस शेयर कर रही है, कभी शी इज़ फीलिंग हैप्पी, कभी शी इज़ फीलिंग एक्चुअली a lot of anxiety. She's feeling different emotions with me. When a woman is actually feeling different emotions with me, there would be a great chance that she will get attracted to me. That's why she's feeling different emotions with me. So for a lot of guys who go for कि भाई मैं किसी भी बंदी को इतना हँसा दूँ, खुश कर दूँ, ये कर दूँ और वो मेरे से पट जाएगी, नहीं. You will become a friend who makes her laugh. So whenever she is feeling sad, she'll come to you, she'll try to feel happy, she'll laugh with you and everything, and then she'll go home. तो दोस्त बन के रह जाएगा भाई. You have to make her feel different emotions. You have to build attraction around her. And how do you do that? You do that by actually doing a lot of stuff around her. Those are all non-verbal stuff. Your eye contact, your smile, your proximity, finding a Zoom connection, tonality, all these things matters a lot. Making them feel, thinking about that some good things that they have done in past, sharing it with you. All these things will make her feel different emotions with you, and that's where she'll feel attracted to you as well along, because she's not sharing it. तुम्हारी proximity कम है, तुम बातें करते-करते हाथ भी पकड़ रहे हो. फ़ोन पे, टेक्स्ट पे हाथ पकड़ सकता है क्या बंदी का? नहीं. तो फ़ायदा क्या भाई? तो योर इंटेंशन शुड बी, अगर तुम टिंडर पे मैच किए हो, तुम्हारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो रही है, उसने तुमको अपना नंबर दे दिया, यू वेंट ऑन अ कॉल विद हर. When you went on a call with her, तेरे को 1-1, 2-2 घंटे. So the biggest mistake that men do is when they meet any woman, they try, uh, whenever they meet any woman, or through Instagram or through online portals or different number of places, what they will do is, या फिर वो किसी लड़की से अप्रोच करके भी मिले, उन्होंने टेक्स्ट करके नंबर ले लिया और टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं. अब वो ना ये सोचते रहते हैं कि कब अभी टाइम आएगा, हम ऐसा कुछ करें जहाँ पे वो टाइम आएगा कि हम मिलेंगे. वो तब तक वो सोचते हैं कि हम बात ही करते रहे. वो एक कन्वर्सेशन पे दूसरी कन्वर्सेशन क्रिएट करते रहते हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 10वीं. 10 दिन तक बात ही करते रहते हो. वो जितना भी इमोशन स्पाइक होता है ना, जो तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील कर रही होती है, वो सारा खत्म हो जाता है और तुम बातें ही करते रह जाते हो. और वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, धीरे-धीरे बातें कम हो जाती है, रिप्लाईज़ कम हो जाते हैं और वो अट्रैक्शन ही खत्म हो जाता है. अट्रैक्शन इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, राइट? So what you really need to do is, whenever you are texting a girl next time, try to build some push pull, create some banter, teasing, different number of things. And when the attraction is built, ask her out.
I really like your company. मतलब मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, I think that I love your company, but I'm not sure. But to be sure, I'd love to meet you. मतलब, what are you doing this Friday? Tell her a fixed place, fixed time, and you will get an answer whether she really wants to meet you or not. Does that sound good? Yes, very good. Perfect, bhai. Amazing. It was anything we want to ask before we end this, because we are always already done with the time. I have another call to attend, and anything that you want to ask or anything that you want to say before we leave this call. I can't think of now. You can't think of now. Are you feeling nervous? No, it was good. So amazing experience. I like your advices. Your advice are very different from the on YouTubers. Like I know I watched Iron Man lifestyle and then bro thing. I like your advices more better than theirs. Thank you, man. Now, they are also amazing, man. They are also doing Yeah, they're so amazing. Like yeah, and everybody has their own way of telling things. They have their own way. I have my own way, but we are all I like happy towards yeah. doing the same thing. That's great, man. Thank you so much for that. Lovely talking to you. और अच्छा लगा भाई, okay? No, no,